Good morning everyone. Today we are going to study about nationalism in India. As you have seen that modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states, in which you have seen that new symbols and icons, new songs and ideas came into being. And after that, anti-colonial movement also started in different part of the world, and Vietnam also. So look into all these. Our country also started anti-colonial movement, and so we'll study about this in this chapter. That you have seen that Gandhi ji returned India from South Africa in January 1950. And after that, now there Gandhi ji worked as a barrister. Barrister means lawyer. Or what they did, he also practiced satyagraha. So in the same way, when he returned India, he also decided to practice satyagraha, and with the help of that he wanted to bring freedom to our country. So when Mahatma Gandhi returned to India, what he did, first of all he traveled to different part of the country. In 1916 कहाँ गए थे वो? He went to Champaran in Bihar, and after that he inspired the peasant to struggle against the oppressive plantation system. And after that, in 1917, he organized satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat affected by the crop failure and the plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding the revenue collection be relaxed. उसके बाद कहाँ गए वो? He went to 1980. Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize satyagraha movement amongst cotton mill worker. So in that way, Gandhiji started satyagraha movement, and because of that, to see the new development, now Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha. इसको देखते हुए क्या किया जो ब्रिटिशर्स थे, व्हाट दे डिड, ही स्टार्टेड he passed an act, and that act was known as Rowlatt Act, to repress the political activities. And according to act क्या था? Now it allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इसकी वजह से महात्मा गांधी ने क्या शुरू कर दी? हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. लेकिन ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड, दे टुक द एक्शन and impose martial law, and the command was given to General Dyer. So on 13 अप्रैल के दिन, जिस दिन बैसाखी थी, बाहर के बहुत सारे जो लोग थे, गांव के लोग थे, they also came to Amritsar for purchasing because that day was Baisakhi. And some of the people, they also collected in Jallianwala Bagh to listen their leader. But Gandhiji was not allowed to enter in Delhi. अब General Dyer, because the martial law was imposed, so General Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd. और उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें मर गए. Because of that, now there was widespread anger all over the country. अब लोगों ने क्या किया? What they did, they started strike, clashes with the police,
एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इट वाज सप्रेस्ड ब्रूटली। अब महात्मा गांधी ने देखा कि देयर वाज द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, और उन्होंने देखा कि जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, दे आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर। सो ही वांटेड टू नाउ यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। तभी क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, देन ब्रिटिशर्स इम्पोज that is harsh treaty on Ottoman Turkey, and they wanted to crush the temporal power of Khalifa. तभी जो दो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो गांधी जी के पास आए और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि हम भी जो खलीफा है उसके सपोर्ट में एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं। So that is why Gandhi ji saw this, that is opportunity, and after that he decided to launch a movement, and that movement was known as Khilafat movement. So in Calcutta session of the Congress in September 1920, non-cooperation movement in support of Khilafat movement was started. Now, why non-cooperation? अब non-cooperation क्यों शुरू किया गया? गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा 1909 में, that book name is हिंद स्वराज, और उन्होंने गांधी जी ने कहा कि why the Britishers are ruling over our country? Because we are helping them. अगर हम इनको कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश राज विद इन 1 ईयर ख़त्म हो जाएगा। सो अब उन्होंने कहा, जो हमारे देश के लोग थे उन्होंने से कहा कि कैसे इसको हम शुरुआत करें। उन्होंने कहा ये स्टेजेस में अनफोल्ड होना चाहिए। क्या किया? पहले सरेंडर ऑफ टाइटल दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड और गिवन टू द पीपल ऑफ द कंट्री, बाइकॉट द सिविल सर्विसेज, army, police, court and legislative council, school and foreign goods. Okay, so now finally at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and a non-cooperation program was adopted. Why? Because there was clash between the Congress. So that is why that Nagpur session in 1920, it was, that is, worked out, and compromise was worked out among the two groups of the Congress, and they adopted the non-cooperation program. Now, अब ये मूवमेंट को अलग अलग तरह से कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले, बिकॉज वेरी लेस नंबर पीपल वर लिविंग इन द टाउन्स, so what happened in the towns? बहुत thousands of students left government controlled schools. फिर schools and colleges and headmaster and teachers resigned. Lawyers gave up their legal practices. फिर जो foreign goods थी they were boycotted, and liquor shop were picketed, and जो विदेशी सामान थी उसकी क्या जलाई गई? होली। सो देयर वाज दैट मूवमेंट वाज नोन एज स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्गर। वाई? क्योंकि जो अब गवर्नमेंट, हमारे देश के जो लोग थे उनके अपने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, कोई जॉब्स नहीं थी, खादी बहुत कॉस्टली थी, and that is why it was suspended very quickly. So अब now rebellion in the countryside, जो जंगल थे वहाँ पर या पीजेंट्स ने इस हड़ताल को, इस मूवमेंट को किस तरह से देखा। सबसे पहले हम देखेंगे जो पीजेंट्स थे। पीजेंट्स क्या चाहते थे
पीजेंट जो गाँव में रहते थे, खेती करते थे, ठीक है, दे वर अगेंस्ट ऑफ तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स. वाई? दे डिमांडेड द हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस. और उनसे क्या करवाते थे? वो बेगार करवाते थे. इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो हाई रेंट्स उनको दें. दैट इज़ वाई बाबा रामचंद्र he took the command of the peasant movement in India, in Awadh, part of Awadh. So that is why earlier he was busy and work as a indentured labor. So that is why the peasants movement demanded reduction in revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlords. इसकी वजह से कई जगह पे नाई धोबी बंद एस्टेब्लिश्ड एंड दे वर थ्रू पंचायत्स द लैंडलॉर्ड्स वर डिप्राइव्ड नॉट टू कॉल फॉर बेगार. एंड व्हाट हैपेंड अमंग द फॉरेस्ट पीपल, इन द ट्राइबल पीपल ऑल्सो. यू हैव सीन दैट आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, now these tribal people were not allowed to enter into the forest. So that is why they were not able to graze their cattle or collect fuel wood and fruits, and that is why they spent their life miserably. They were not able to collect all these things for their livelihood. उसकी वजह से अब, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वो बेगार करें. क्या बेगार करें? उनके जो फॉरेस्ट हैं उनमें काम करें, बॉन्डेड लेबर की तरह से रोड बिल्डिंग में काम करें. सो दैट इज़ वाई नाउ द रिवोल्ट ऑल्सो ब्रोक आउट इन ट्राइबल एरियाज अमंग द फॉरेस्ट पीपल. एंड हु टुक द कमांड? अलूरी सीताराम राजू इन द गुडिन हिल्स. और वो क्या कहता था अलूरी सीताराम राजू? That he claimed that he had a variety of special power. And Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, and he said that he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. And he was very expert in guerrilla warfare. But ultimately क्या किया? उसको पकड़ लिया गया and he was brutally killed. In that way the tribal movement also that is stopped. Now the movement also started among the plantation workers. अब जो plantation workers थे, they were called for the manual labor, but an act was passed in 1859 and that act was known as इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. उसमें क्या था? प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द दैट इज टी गार्डन्स विदाउट द परमिशन, एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन. उनका कोई भी नहीं छोड़ सकता और उनको परमिशन भी नहीं मिलती थी. जब उन्हें खबर मिली कि गांधी राज आ गया है और हमको गांव जाने पर अपनी ज़मीनें मिल जाएंगी और हम वहाँ पर आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकेंगे, सो दैट इज़ वाई दे लेफ्ट द टी गार्डन्स. बट देयर वाज द स्ट्राइक ऑफ डॉक वर्कर्स एंड रेलवेज, सो they were captured and punished, and ultimately again they were put into the that is confined area. Now उसके बाद में in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि that movement was based on अहिंसा एंड नॉन वायलेंस. लेकिन जो सत्याग्रहीज थे उन्होंने क्या किया? चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और वहाँ पर 22 जो पुलिसमैन थे वो मर गए. So that is why he decided to withdraw the non cooperation movement.
उन्होंने क्या कि जो सत्याग्रहीज हैं अभी फुल्ली ट्रेंड नहीं हैं. सो दैट इज़ वाई C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for the return to council politics. उनका काउंसिल पॉलिटिक्स में हमको वापस जाना चाहिए. क्यों? जब तक हमारे पास कुछ पॉलिटिकल पावर्स नहीं होंगी तब तक हमारे पास कुछ बोलने का अधिकार नहीं होगा. बट द यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन. एंड तभी क्या हुआ, उसी टाइम जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो बहुत कम हो गए 1926 एंड अब से 1930 तक, ऑलमोस्ट कोलैप्स. एज द डिमांड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड द एक्सपोर्ट डिक्लाइन, peasant found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. अब उसकी वजह से दे वांट सम रिफॉर्म्स. उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही कुछ गड़बड़ियाँ. तो उसकी वजह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सुना तो उन्होंने क्या किया, एक कमीशन सेटअप कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन. और उसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे. और सारे के सारे क्या थे उसमें? ब्रिटिशर्स थे. और उनको क्या करना था? to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. लेकिन चेंज कौन करता? उसमें तो कोई इंडियंस था ही नहीं. So that is why the people were against of that commission. When Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with "Go back, Simon." So that look into that problem, Lord Irwin took the effort and he announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India. और उन्होंने क्या किया कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आप आ जाओ. लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए तो in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj, of full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be declared celebrate as the Independence Day. क्यों? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल हो चुकी थी. और उन्होंने उसके बाद गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा कि अगर ये, उन्होंने 11 डिमांड्स उसमें लिखी. उन्होंने कहा कि अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे कि हम वापस आपके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू कर देंगे. सो दैट इज़ वाई ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin, but Irwin did not accept the demand. उसमें एक डिमांड थी कि जो सॉल्ट पर जो टैक्स है वो हटा लिया जाए, और भी कई डिमांड थी, लेकिन जो एक कॉमन डिमांड थी वो थी सॉल्ट पर टैक्स हटाने की. तो जब उन्होंने नहीं मानी तो दैट इज़ वाई गांधी स्टार्टेड अ मूवमेंट, एंड दैट मूवमेंट वाज नोन एज दैट इज़ डांडी मार्च और दैट इज़ सॉल्ट मूवमेंट. उसके वजह से गांधी जी ने क्या किया कि ही स्टार्टेड अ मार्च फ्रॉम 11th March. Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 followers, and the march was over for 240 miles. कहाँ से शुरू की उन्होंने? साबरमती से. और कहाँ ख़त्म की? कोस्टल टाउन है गुजरात का, डांडी. और वहाँ जाकर के उन्होंने 6 अप्रैल को उसके किनारे पर जाकर वहाँ से ज़मीन से सॉल्ट उठाया और अनाउंस कर दिया कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी मोनोपोली ख़त्म करनी है और सब अपना सॉल्ट बनाने के लिए फ्री हैं. उसके साथ ही साथ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड. उस मूवमेंट में लोगों ने क्या किया
कि जो भी नियम कानून थे उनको मानने से मना कर दिया। फिर एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ वॉज बाइकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes, village officials resigned, and in many places forest people violating forest laws. And they also forest, they were not they denied to give the grazing tax also. So अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे they started suppressing the people. So there was the clash between the satyagrahis and that is the Britishers, and that is why it led the violent clash at many places. अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, he was the disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. उसकी वजह से a frightened government respond with the policy of brutal repression, and many satyagrahis were arrested and put into the jail. अब ये सब सिचुएशन देखते हुए अब गांधी जी ने क्या सोचा कि ही एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5th March 1931. एंड गांधी जी ने कहा कि ओके, नाउ आई विल जस्ट पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस which were held in London. क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was boycotted by गांधी जी. So in December 1931, गांधी जी went to London for the conference. लेकिन जो negotiation था that was broke down. And many leaders were not released from the jail. So अब in that way, now civil disobedience movement continued, but by 1934 it lost its momentum. अब अलग अलग लोगों ने इस मूवमेंट को किस तरह से देखा, जो अब सबसे पहले हम देखेंगे रिच पीजेंट्स के बारे में. व्हाट द रिच पीजेंट्स डिड. अब रिच पीजेंट्स जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो चाहते थे कि उनका जो रेवेन्यू है क्रॉप के ऊपर वो कम हो जाए, क्योंकि जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी और उसके प्राइसेस भी बहुत कम हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से. सो दैट इज़ वाई दे वर वेरी, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू. लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म हो गया तो उनका भी पार्टिसिपेशन ख़त्म हो गया. अब दोबारा जब मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. अब जो पुअर पीजेंट्स थे, जो पुअर थे, दे वर द टेनेंट्स. अब वो किससे बहुत परेशान थे. दे वर द टेनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट. अब दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रीएमिटेड. लेकिन जो कांग्रेस थी, they were unwilling to now fulfill their demands, so they kept aloof. Another class is that is business class. Business class क्या चाहती थी. They wanted protection against imports of foreign goods and the rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import. लेकिन क्या हुआ. What they did, they organized business interests. They formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, that is FICCI, in 1927. They gave financial assistance and refused to buy or sell import goods. लेकिन जब इसने अपना मोमेंटम खो दिया, so again when it was started, this movement started, they did not participate. फिर industrial workers, the industrial workers also lukewarm to this movement. अब कुछ ऐसे थे, they wanted to participate, तो उन्होंने क्या करे, उन्होंने गांधी कैप पहनी,
ठीक है, एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन बाइकॉट कैंपेन। लेकिन बहुत सारे जो वर्कर्स थे दे डिड नॉट वांटेड टू पार्टिसिपेट। क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू इम्प्रूव देयर condition in the industrial area, reduce their working hours, now increase their salaries. But Congress did not supported them, and that is why these people did not like to participate in those movements. Now what about the women? In the non-cooperation movement, very less women participated. लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो जब गांधी जी ने अपनी सॉल्ट मार्च शुरू की, उस टाइम मैनी वुमेन ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड हाउस, रिच people, women, they also came out from their house and participated in Gandhian movement. But Gandhi ji told them that it is their prime duty to look after their family. लेकिन जो कांग्रेस थी वो सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रेजेंट चाहती थी वुमेन की, और वो नहीं चाहती थी कि ज़्यादा वुमेन इसमें पार्टिसिपेट करें। नाउ लिमिटेशंस ऑफ द वुमेन, लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इसकी लिमिटेशंस कि इसमें आपने देखा कि जो डिप्रेस क्लासेस थी और मुस्लिम्स थी, they did not like to participate in those movements, civil disobedience movement. क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर अटेंशन उसमें नहीं मिल पा रहा था। सो दैट इज़ वाई अम्बेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो देयर वाज द क्लैश बिटवीन महात्मा गांधी एंड दैट इज़ B.R. अम्बेडकर इन 1930। तो उस टाइम क्या हुआ कि गांधी जी ने वो भी चाहते थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए इन द सेम वे एज द मुस्लिम डिमांडेड, बट गांधी जी वेंट ऑन फास्ट टिल डेथ। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से डिवाइड होते जाएंगे तो जो कंट्री को मैं यूनाइट करना चाहता हूँ वो यूनाइट तो होगी नहीं। एंड अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा अम्बेडकर ने कि गांधी जी ने इस तरह का व्रत ले लिया है, तो उन्होंने क्या किया, अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जीज पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। और पूना पैक्ट साइन किया गया और उसमें क्या कहा गया, इट गेव द डिप्रेस क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। अब जो मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम्स को एश्योर किया जाए कि रिजर्व सीट मिलेंगी सेंट्रल असेंबली में एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनियन प्रोविंसेस। लेकिन उनकी ये जो होप थी वो ख़त्म हो गई। कब? जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इन 1928 में M.R. जयकर, जो किसको बिलोंग करते थे, हिंदू महासभा को स्ट्रांगली मना कर दिया कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वाई मुस्लिम्स ऑल्सो केप्ट अलूफ फ्रॉम दिस मूवमेंट। अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई? ये नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कराने के लिए जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ कि जो हमारा ओल्ड कल्चर था, ट्रेडिशन था, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, फोक सॉन्ग्स थे, फोक लोर्स थे, उनको ग्लोरीफाई किया जाए। और उनको ग्लोरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने सबसे पहले एक इमेज क्रिएट की एंड दैट इमेज वाज नोन एज इमेज ऑफ भारत माता, एक साध्वी की इमेज, ठीक है। और उसको पेंट किसने किया? दैट इज अवनींद्रनाथ टैगोर। दैट वाज द एशियाटिक फिगर। शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। अब इसी तरह से ये फोक लोड्स और फोक सॉन्ग्स कलेक्ट करने का काम बंगाल में किया रविंद्रनाथ टैगोर ने,
और साउथ इंडिया में किया नतेशा शास्त्री ने। अब बारी आती कि हमारा फ्लैग कैसा हो। तो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वाज डिज़ाइन, और उसके ऊपर कितने थे, क्या थे, 8 लोटस थे, और वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, 8 प्रोविंसेस को। और उसमें क्या था, क्रीसेंट मून, क्रीसेंट मून, दिस रिप्रेजेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। फिर 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग डिज़ाइन किया, उसमें भी 3 कलर थे, लेकिन क्या थे, रेड, ग्रीन एंड वाइट, और उसके बीच में क्या था, एक स्पिनिंग व्हील। ठीक है, ये दिखाता था गांधीयन सेल्फ हेल्प को। फिर उसके बाद में कई फ्लैग चेंज हुए एंड अल्टीमेटली वी एक्सेप्टेड द फ्लैग विच वी आर नाउ अनफर्लिंग द टाइम ऑफ, दैट इज Republic Day and Independence Day. So that is why you have seen, with the help of all these movements and introducing the national identity, we got our independence and now we are free Indians. Thank you.